basically inheritance is a general term which I can say like a child inherit the property of parents. पिताजी की माताजी की जो भी प्रॉपर्टी होती है, like in the sense of physical, or you can say intellectual, or you can say physical means I am saying physical properties and physical structure also. So like we inherit similar kind here. If a class wants to extends another class, it can be inherit the property of its parent class. So we use inheritance because we want to reusability. Like if I have developed or I have designed a class shape and then I'm going to declare another class slender. So I know there is a relationship between slender and shape. So instead of making an independent class shape and slender, I can make a slender as a child class of a shape. So I can inherit all the properties of a shape class. So then Java can be achieved by using a extending a class, extend keywords, and whenever a one class extends to another class, it is called the child class, or it is called the subclass, or it is called the drive class. जो क्लास एक्सटेंड करती है किसी दूसरी क्लास को, वो सब क्लास, ड्राइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास कहलाते हैं, और जिसको एक्सटेंड करते हैं वो सुपर क्लास, बेस क्लास और पेरेंट क्लास कहलाती है। ठीक है, और a class can either extend another class or it can implement an interface. So you can say in a Java, properties can be inherited by two ways, using an inherit interface or using a classes. So there is a certain thing which is not provided by the inheritance, that is why interface is provided. So if I want to extend another class, then I should use the keyword class B extends A. It means I am extending the properties of a class A. So in that case, A will be my superclass and B will be my subclass. So this is the diagram, you may say. So the class whichever inheriting the another class, it is like it is a parent class, it is a child class. So similarly, we can also use implement interface. So interface is similar to a inheritance, only the difference is implement interface does not have any definition. It has only declaration. So class B implements A. It means A, I have an interface A. Our interface does not have any definition, it has only declaration. So class B. So A is an interface, B is a subclass. Now, what is the interface exactly? I will tell you later on in detail, but right now this is the sufficient. All interface and inherit means parent class is the same thing. Only the difference is interface does not have definition. डेफिनेशन मीन्स कि इंटरफेस में हम ओनली मेथड्स को डिक्लेयर करेंगे, जैसे हम मेन जैसा हम अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हमें अगर कोई मेथड यूज करना है इन द मेन, तो आई हैव टू डिक्लेयर एंड definition I can write later on. So similarly here in interface I only write the method name. दैट इज द डिफरेंस, और बहुत डिटेल में हम बाद में देखेंगे जब इनहेरिटेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है मैम, सब क्लास सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज को लेता है, राइट? हाँ या तो ये वाला जो ऊपर वाले केस में आ रहा है वो नीचे की तरफ पॉइंट नहीं करना चाहिए? नहीं, सब क्लास लेता है ना, तो ये ले रहा है ना। नहीं तो ए को अपनी प्रॉपर्टीज बी को देखता है।
नहीं, it is shown like this only. ऐसे ही शो करते हैं. अगर आप आगे कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन कोर्स पढ़ोगे तो यू विल फाइंड दीज आर द सर्टेन नोटेशन व्हिच वी यूज. ये मैथ वाला सुपर या सब नहीं है, इसमें उल्टा चलता है. हाँ, यूं कह सकते हो. क्यों? सो इंटरफेस अगर होगा तो उसमें ये डॉटेड लाइन यूज करते हैं. ठीक है. अभी नेक्स्ट सेम में आप डेटाबेस पढ़ोगे तो उससे थोड़ा और क्लियर होगा. वहां पे आप ईआर डायग्राम पढ़ोगे. और अपने इस वाले कोर्स में क्लास डायग्राम नहीं है. अदरवाइज हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आएगा क्लास डायग्राम. तब आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है ये नोटेशन और क्लियर. ठीक है. यहाँ पे तो जस्ट आई हैव शोन. So this is the interface. So B is implementing a interface. ठीक है. अभी बताऊंगी कि इंटरफेस क्यों प्रोवाइड हुआ है, बट ओरिजिनल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम आफ्टर कपल ऑफ क्लासेस वी विल लुक. सो दिस इज देन वेरियस फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस. तो एक सिंगल इनहेरिटेंस होता है कि एक क्लास जो है दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर रही है. तो ए सुपर क्लास है, बी सब क्लास है. और अगर ये इंटरफेस के केस में होता है तो वी विल शो लाइक दिस. सो हियर वी शुड शो डैश्ड लाइन. देन हायरार्किकली इंटरफेस मीन्स क्या है कि एक क्लास ये वाली क्लास को ये तीनों इनहेरिट कर रही है. ठीक है. सो दिस इज पॉसिबल इन जावा कि मैंने क्लास एक्स बनाई, फिर क्लास ए बनाई, उसमें लिखूंगी एक्सटेंड्स एक्स, क्लास बी एक्सटेंड्स एक्स, क्लास सी एक्सटेंड्स एक्स. So this hierarchy is possible. And if in the case of interface, one interface can be implemented by many classes. ठीक है. Then multi-level inheritance means एक मतलब एक hierarchy बनी हो जिसमें एक एक क्लास एक्सटेंड कर रही हो. तो मतलब नीचे से चलोगे तो आप बोलोगे कि C is inheriting B, B is inheriting A. तो अब ऐसे नहीं लिखें. How they declare? They will write class C extends B, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, क्लास ए. तो मतलब ऑब्वियसली सी क्या होगा, एक ही प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट करेगी इस वाले ऐसे अगर मैं लिखूंगी. इसके एग्जांपल्स हम बाद में देखेंगे. एंड दिस इज फॉर इंटरफेस. मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा इज नॉट प्रोवाइडेड व्हाइल इट इज प्रोवाइडेड इन C++. सो मल्टीपल इनहेरिटेंस मीन्स क्या है कि एक क्लास दो क्लासेस को एक्सटेंड करे. Means I cannot write class C extends A comma B or class C extends A extends B. This is not allowed. अब आप लोगों कई लोगों ने C++ भी पढ़ी है, कईयों को जावा भी है. तो can anybody tell me why it is not provided in Java? Or what could be problem if I do this? मैम आपका क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं? लाइक मेरा ये है कि मैं कह रही हूँ, मैं अगर ये मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में प्रोवाइडेड नहीं है, अलाउड नहीं है. अलाउड नहीं है मीन्स कि आई कैन नॉट राइट क्लास सी एक्सटेंड्स ए कॉमा बी. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस फिगर ना, कि आई वांट टू राइट क्लास सी विल एक्सटेंड्स ए कॉमा बी. सो व्हाई इट इज नॉट प्रोवाइडेड? मैम बिकॉज टू प्रिवेंट एम्बिग्विटी. बिकॉज दो क्लासेस से अगर जावा में तो दोनों के अलग डिफरेंट मेथड्स हो गए, तो फिर कंपाइलर डिसाइड नहीं कर पाएगा कौन से मेथड को इनहेरिट करना है. हाँ हाँ. कौन छवि बोल रही है? यस मैम. आ जाइए ना. मैम आई वाज देयर यस्टरडे आल्सो, बट एट दैट टाइम आई वाज गॉन टू द वॉशरूम. चलो ठीक है, क्लास के बीच में वॉशरूम जाना अलाउड नहीं है. ठीक है. चलो, जस्ट आई एम जोकिंग. Okay, but I haven't seen you, that is why I was calling you. Okay, yeah, her answer is correct. So यही है कि अगर मेरी क्लास A है और क्लास B है, उसमें कोई भी मेंबर दोनों में कॉमन हो. लाइक मैंने एक मेथड लिख दिया void show, A में भी लिख दिया, B में भी लिख दिया. अब मैं उसको क्लास C को एक्सटेंड करूंगी, क्लास C एक्सटेंड A कॉमा B. तो अब मैं शो मेथड अगर इसका यूज करूंगी तो किसका यूज करूं, A का और B का. So that is the ambiguity in here.
that is why it is not allowed in a Java, but C++ में अलाउ है, और उसमें आई थिंक रेजुलेशन ऑपरेटर कुछ यूज करते हैं, that is why there is no ambiguity. They can identify they are want to call the method of class A और B. ठीक है, तो सिमिलर, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है ये अलाउ नहीं करता है यूजिंग अ इनहेरिटेंस, बट इंटरफेस के द्वारा आप कर सकते हो. तो आई कैन, मतलब एक क्लास जो है वो एक से ज्यादा इंटरफेस को इनहेरिट इम्प्लीमेंट कर सकती है. इट मीन्स आई कैन राइट क्लास C implements A, B, but I cannot write class C extends A, B. इसीलिए जावा में इंटरफेस अवेलेबल है. क्लियर दिस? मैम लेट्स Yeah. से कि अगर क्लास ए एंड बी के जो मेथड्स है अलग अलग है, दोनों कोई भी हाँ. सेम नहीं है, क्या तो भी भी नहीं कर मल्टीपल, सकते. इस पर तो एम्बिग्यूटी एरर नहीं आएगा फिर भी बस. एम्बिग्यूटी नहीं आएगा, बट स्टिल इट डजंट अलाउ, बिकॉज वो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए इन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया. ओके मैम. यूनिवर्सल नहीं है इसलिए मना कर दिया. हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे आंसर है. पहला भी अच्छा आंसर दिया था कि यहाँ पर ये कोई मैथ का सिंबल नहीं है, ठीक है, और ये भी अच्छा आंसर है कि यूनिवर्सल नहीं है इसलिए अलाउ नहीं है. ठीक है, और कोई डाउट? मैम मल्टी लेवल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस में जो हमारा सी है उसमें हाँ. एक बार आप मेरे को ये बता दो कि फर्क क्या पड़ रहा है, कि जैसे सी मल्टी लेवल में बी और ए दोनों से डिराइव कर रहा है, तो जो जो कंटेंट्स बी और ए से डिराइव कर रहा है वो मल्टीपल में सेम कर रहा है या कुछ अलग कर रहा है, मतलब इवन दो जावा में सपोर्टेड नहीं है, कुछ वो डिफरेंस है कि क्या क्या ले रहा है या नहीं? ओके, आई बिकॉज अंडरस्टैंड. अगर हाँ, बिकॉज yes. अगर डिफरेंस नहीं है तब तो मल्टी लेवल से काम चल ही रहा है हमारा, मल्टीपल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अब वो जो है आपका डिफरेंसेस कहाँ आएगा, ये मैटर करता है ना. तो यहाँ पर आपका अगर हम दो क्लास को इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो सेम ही चीज है, और यहाँ पर भी कर रहे हैं तो सेम ही चीज है. यस. हाँ. मैम या- अगर दो इंटरफेसेस में सिमिलर मेथड डिक्लेयर करे हुए हैं तो फिर क्या होगा? वो अलाउ ही नहीं. दो इंटरफेस में सिमिलर मेथड डिक्लेयर करे हैं, एक मिनट, लेट मी रिमेम्बर. सो या, तो इसका आंसर मैं आपको जब इंटरफेस बताऊंगी ना तब मिल जाएगा, इस वाले का जो अभी पूछा आपने, कि दो अगर मैं इंटरफेस इंप्लीमेंट करूंगी ना तो उस, और दोनों में अगर सेम मेथड होगा तो बेसिकली क्या होता है, इंटरफेस हमारे को जो है रन टाइम बाइंडिंग करता है. तो आपका अगर आपने ए इंटरफेस का इंस्टेंस क्रिएट करोगे और उसको पॉइंट सी क्लास कर रही होगी तो मतलब ए इंटरफेस के मेथड कॉल होंगे, और बी का मतलब पॉइंट बी का क्लास इंटरफेस इंस्टेंस सी को, मतलब सॉरी गलत बोल दिया कुछ, क्या मतलब ये बाद में क्लियर हो जाएगा आपको कि अगर हो सकता है दोनों में सेम मेथड हो, बट वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, बेस्ड ऑन दैट इट विल कॉल दैट मेथड. ठीक है. यस मैम जो हाँ. प्रॉब्लम मल्टीपल इनहेरिटेंस में आ रही है एम्बिग्यूटी वाली, वो मल्टी लेवल में क्यों नहीं आ रही है? उसमें भी तो आ सकती है. मल्टी लेवल में नहीं आएगी. हाँ बट उसमें भी अगर मैं दोनों सेम मेथड डिफाइन कर दिया मैंने अगर, हाँ, तो फिर क्यों नहीं आएगी? वो इसलिए नहीं आएगी कि अगर मल्टी लेवल करते हो ना, तो अगर आपने ए क्लास में भी मेथड डिफाइन कर दिया, लेट अस से void show, और बी क्लास में भी डिफाइन कर दिया void show, तो वहां पर एक तो सबसे पहली बात होती है कि वो रन टाइम पे ये डिसाइड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, ए को या बी को. उसके बेसिस पे वो मेथड कॉल करता है. तो मल्टीपल में ये प्रॉब्लम है कि वो दोनों को एक साथ नहीं कर सकता ऐसा? हाँ हाँ हाँ. अच्छा ठीक है, कौन बोल रहा है, दीपकेश? हाँ मैम मैं हूँ. ठीक है, और अभी हम देखेंगे इनके एग्जाम्पल भी, तो आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें. तो आपके क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल वैलिड है, और मोस्ट प्रोबेबली आई हैव आल्सो ट्राइड द आंसर, और मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन मतलब जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, चलते हैं आगे.
So this is supported by Java. Form of inheritance. So multiple inheritance can be implemented by interface, not extending a class. So I can write class Z extends A implements CD. मतलब ऐसा हो सकता है कि एक क्लास जो है दूसरी क्लास को एक्सटेंड करे और इम्प्लीमेंट्स करे, 2, 3 जितने भी है इंटरफेस, पर एक्सटेंड एक ही करेगी, ठीक है। और दिस इज ओके। तो इंटरफेस है तो आप डैश डैश लाइन, और सुपर क्लास है और पेरेंट क्लास है तो नॉन डैश लाइन। देन आई कैन क्लास Z extends AB और क्लास Z extends AB, बोथ आर नॉट अलाउड। बस सिंपल सी बात है कि 2 बार आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। दिस इज अलाउड। तो इंटरफेस के बाद आप 2 लिख सकते हो, बट ऐसे नहीं लिख सकते। और अगर 2 इंटरफेस इंप्लीमेंट करना तो 2 बार नहीं लिखोगे इंप्लीमेंट्स, एंड भी नहीं लिखोगे, कॉमा करके जितने इंटरफेस करने हैं सबको कॉमा से सेपरेट करके लिखोगे, ठीक है। फिर डेफिनेशन ऑफ अ सब क्लास। तो सिंपल क्लास होती है जैसी हमारी होती है, बस आपको लिखना है यहाँ पर एक्सटेंड्स और सुपर क्लास का नाम। उसके बाद जैसा अभी तक हम क्लास डिफाइन करते आए हैं वैसे ही डिफाइन करेंगे। तो जैसा मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल्स बताती हूँ इनहेरिटेंस के। लाइक मणिपाल में, अगर मुझे मणिपाल का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो आई ऑलवेज व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट डिफाइन अ पर्सन क्लास, देन आई विल मेक अ डिफरेंट हायरार्की कि पर्सन क्लास में कौन हो सकता है, कि यू कैन से कि फैकल्टी, और यू कैन से स्टाफ और स्टूडेंट। फिर स्टाफ में आप कह सकते हो नॉन टीचिंग और टीचिंग, स्टूडेंट में आप कह सकते हो कि फर्स्ट डिग्री और हायर डिग्री। तो लाइक दैट हायरार्की विल हैपन। तो पर्सन जो है उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज होगी कि उसका नाम होगा, एड्रेस होगा, डेट ऑफ बर्थ और जो सब है। फिर आप स्टाफ में आओगे तो उनका जैसे सैलरी होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा, बच्चों का सैलरी ना होकर CGP होगा। तो इस केस में आप क्या बनाओगे, रिलेशनशिप बनाओगे, मतलब पेरेंट चाइल्ड क्लासेस बनाओगे। उसका फायदा ये होगा कि पर्सन क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी भी होगी। तो there is no need to write again the same code, you can use it. और जैसा हमने देखा था कि ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग में कि नंबर क्लास थी, सुपर क्लास थी, और उसकी सब क्लासेस थी हमारी इंटीजर, डबल और these all classes. So these are also example. Then we know object class is a super class of every class by default. तो अगर आप कोई क्लास के आगे कुछ भी नहीं लिखते हो एक्सटेंड, सो इट्स बाय डिफॉल्ट इज अ ऑब्जेक्ट क्लास, इज अ सुपर क्लास, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास में कुछ मेथड्स अवेलेबल है जो कि हर चाइल्ड क्लास में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे आगे। सो दिस देन एक्सटेंड्स, बस यही मतलब है कि वो उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड करेगा। सब क्लास विल नॉट इनहेरिट प्राइवेट मेंबर ऑफ अ सुपर क्लास। अगर किसी भी मेंबर के आगे प्राइवेट लिख दिया तो सब क्लास उसको इनहेरिट नहीं करेगी, ठीक है। अब ये एक्सेस कंट्रोल जो पहले मैंने तुम्हें थोड़ा थोड़ा बताया था, अगेन हियर आई एम टेलिंग यू। सो दिस एक्सेस कंट्रोल विल ओनली वर्क ऑन अ मेंबर्स, ओके। मेंबर्स में कौन कौन इंक्लूड होता है, ओम ठकराल बताना भाई, व्हाट आर द मेंबर्स। ओम ठकराल है? यस मैम। हाँ बेटे, मेंबर्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? मैम पब्लिक, प्राइवेट। वो तो बेटा एक्सेस स्पेसिफायर है। If I declare a class in which I have declared a 3 instance variable and 4 methods, so how many members are there? 3। ओके ओके, 7 होगा ना? अरे 7? तुम क्यों बोल रहे थे, कौन बोल रहा है 7? ठीक है, 7 मेंबर होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं शुभांकर। तो देयर विल बी 7 मेंबर्स। सो मतलब यहाँ पर मैं जो बात कर रही हूँ ये ध्यान रखना, कीप इन माइंड कि आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंबर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्लास,
क्लास के बारे में बात नहीं रही, क्लास के आगे प्राइवेट पब्लिक लिखूंगी वो अलग चीज होगी, और मेंबर्स के आगे पब्लिक प्राइवेट लिखते हैं तो वो अलग होती है। ठीक है, तो जब भी ये फिगर जहां भी देखो तो वो देखना क्या चीज है। क्लास के आगे भी मैं ये सारे एक्सेस मॉडिफायर लिख सकती हूँ, और मेंबर्स के आगे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अभी एक्सेस स्पेसिफायर तुम जानते हो कि 4 है। ये तीसरा वाला फ्रेंडली मीन्स है डिफॉल्ट, जब हम कुछ नहीं लिखते हैं तो वो फ्रेंडली है और फिर प्राइवेट है। तो पब्लिक, प्रोटेक्टेड, फ्रेंडली एंड प्राइवेट। अब मेंबर्स को मैं कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकती हूँ? सेम क्लास में एक्सेस कर सकती हूँ। सब क्लास मीन्स चाइल्ड क्लास इन द सेम पैकेज, मतलब पैकेज आप लिखते नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट देयर विल बी अ डिफॉल्ट पैकेज, वहां पर सारी क्लासेस बनती है। तो अगर आपने कोई सब क्लास बनाई है सेम पैकेज में, और सब क्लास बनाई है अनदर पैकेज में, दूसरे पैकेज में बनाई है, तो क्या होगा? फिर आपकी जो क्लास है और दूसरी क्लासेस है उसमें कोई रिलेशन नहीं है। लाइक आई हैव डिक्लेयर्ड अ क्लास एक्स, क्लास वाई इन सम पैकेज, तो देयर इज नो रिलेशन बिटवीन these classes parent and child, but both are available in the same package. तो अगर सेम अदर क्लासेस है तो वो कहाँ कहाँ अवेलेबल हो सकती है? सेम पैकेज में और डिफरेंट पैकेज में। तो यहाँ पे बेसिकली अदर क्लासेस ही होनी चाहिए। तो मीनिंग इज सेम, कि सेम पैकेज में एक्सेस करना चाहते हैं, डिफरेंट पैकेज में एक्सेस करना चाहते हैं, सब क्लास एक्सेस करना चाहते हैं, अदर क्लास एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, और अब अगर वैसे देखा जाए, मतलब एक तो ये कि ये चार्ट मैं रटूं, और एक सिंपल सी चीज है कि पब्लिक अगर किसी भी मेंबर्स के आगे लिखा है तो वो सब जगह एक्सेसिबल है। गाइस कोई सी भी यहाँ पर हो, पांचों में से सब जगह एक्सेसिबल है। प्रोटेक्टेड अगर मैंने किसी कीवर्ड को लिखा है तो आप कहोगे कि वो जो है विथ इन पैकेज अवेलेबल है किसी को भी, और आउटसाइड द पैकेज जो है वो खुद की सब क्लास को ही अवेलेबल है। तो आउटसाइड द नॉन सब क्लास को अवेलेबल नहीं है, बाकी सबको अवेलेबल है। और कुछ नहीं लिखा है तो विथ इन पैकेज अवेलेबल है, आउटसाइड द पैकेज अवेलेबल नहीं है। तो ये दोनों आउटसाइड द पैकेज है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और यहाँ सब जगह अवेलेबल है। प्राइवेट, हाँ मैम मतलब अगर कोई क्लास हम बना रहे हैं और ऐसे स्पेसिफायर नहीं लिखा है नाम, तो वो बाय डिफॉल्ट फ्रेंडली हो जाएगा। या एंड इट इज अवेलेबल विथ इन दैट पैकेज। तो जैसे आपने पैकेज नहीं लिखते हम किसी क्लास के आगे, तो वो भी क्या है? बाय डिफॉल्ट पैकेज है। तो इट मीन्स इट इज डिफॉल्ट पैकेज में आपकी क्लास, सब क्लास और अदर क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है। फिर प्राइवेट है, मतलब प्राइवेट तो प्राइवेट ही होता है भैया। ठीक है, तो इट इज अवेलेबल इन सेम क्लास ओनली, अदर क्लासेस इट इज नॉट अवेलेबल। तो सिंपल तो आप ऐसा रन कर सकती। ये तो हुआ चार्ट। अब आप बोलोगे पब्लिक इज अवेलेबल एट एवरीवेयर, प्रोटेक्टेड इज अवेलेबल विथ इन द पैकेज और सब क्लासेस, डिफॉल्ट इज अवेलेबल इन पैकेज ओनली, प्राइवेट इज अवेलेबल इन क्लास ओनली। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड का यूज नहीं करते हैं हम, और पब्लिक का कर सकते हो। फ्रेंडली तो बाय डिफॉल्ट चलता ही है फ्रेंड में। ठीक है, और ये प्राइवेट है। अभी इनके भी थोड़े थोड़े आएंगे, बट प्रोटेक्टेड का बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं हम लोग, तो नहीं करते। अब इंडस्ट्री पर्सन्स को जरूरत पड़ती होगी तो आई डोंट नो। ठीक है, आगे बढ़ू नेक्स्ट स्लाइड में। यस मैम। ठीक है, तो अब आता है इनहेरिटेंस बेसिक। व्हेनेवर अ सब क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट। इनहेरिटेंस मीन्स ही क्या है कि आई एम इनहेरिटिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ माय पेरेंट। अब मैं प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही हूँ मीन्स क्या है कि वो मेरे पेरेंट एग्जिस्टेंस में तो आए हैं। तो एग्जिस्टेंस में कब आएगा? जबकि उनका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब वो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो डिपेंड करता है मेरे पेरेंट्स ने क्या काम करा है। तो बेसिकली है कि आपका जब भी कोई चाइल्ड क्लास बनेगी तो वो इनहेरिट करती है पेरेंट्स की प्रॉपर्टी, और पेरेंट्स की प्रॉपर्टी कब आएगी? जब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। अब कैसे कॉल होगा ये डिपेंड करता है
कि मेरे सुपर क्लास ने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है क्या या नहीं बनाया है, और बनाया है तो पैरामीटराइज बनाया है या अनपैरामीटराइज बनाया है। नहीं बनाया है तो मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा और वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, अभी सब एग्जांपल्स देखेंगे। इफ सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स ओन or has an unparameterized constructor, then it is automatically called by Java runtime using this keyword super. सुपर कीवर्ड से ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा अगर उसने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है या फिर अनपैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब प्रॉब्लम तो जब आती है जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो। If superclass has a parameterized constructor, then it is the responsibility of the subclass constructor to call the super constructor by this. तो उसको लिखना पड़ेगा सुपर और पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। ठीक है, और साथ में कंस्ट्रेंट ये है कि इट शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द आवर कंस्ट्रक्टर। हमारे कंस्ट्रक्टर का ये पहला स्टेटमेंट होना चाहिए सुपर लाइन। ठीक है, जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि एक कंस्ट्रक्टर से मुझे दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो इट शुड बी फर्स्ट स्टेटमेंट एंड आई शुड यूज द कीवर्ड दिस एंड पास द पैरामीटर। तो सेम थिंग इज हियर, सुपर कीवर्ड शुड बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन आवर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली ये चीज ड्राइव करके चलो कि पेरेंट क्लास में अगर अनपैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और नहीं है तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, और अगर है तो मुझे एक्सप्लिसिटली उसको कॉल करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। ठीक है, आगे समझ में? मैम सुपर कीबोर्ड तो दोनों में दोनों अनपैरामीटराइज और पैरामीटराइज दोनों को कॉल करने के लिए लिखना ही पड़ेगा ना? नहीं, नॉट नेसेसरी। इफ आई हैव अ अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर देन इट्स नॉट नेसेसरी। अच्छा मैम, अनपैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के केस में जैसे ही हम लोग एक्सटेंड वाला जो क्लास होगी उसको कॉल करेंगे तो अपने आप वो सुपर क्लास कॉल हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, अब एग्जांपल, जस्ट अ मिनट, आई हैव टू टेक वन फोन कॉल, ही इज कॉलिंग एंड इट इज अर्जेंट आल्सो। मैम कॉल आया। ठीक है, तो देन ओके, ये हमने देख लिया। नाउ कम टू हियर। अब व्हेन एग्जांपल वी विल सी व्हेन सुपर क्लास हैज अ अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सुपर क्लास ने एक्सप्लिसिटली अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफाइन करा है, तो अभी मैं इसको एक्सप्लिसिटली कॉल करूंगी तो कोई हार्म नहीं है, नहीं कॉल करूंगी तो भी चलेगा। ठीक है, अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की केस में। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो क्या आउटपुट आएगा? Anybody can tell me? No, I will ask. If I run this program, what will be the output? अभिमन्यु। मैम एक मिनट, कोड देख रहा हूँ। हैं? कोड देख रहा हूँ मैम, एक मिनट। ओके, देख लो। अदिति। दिस इज कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए, फिर उसके बाद दिस इज कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी।
आदित्य यादव, गए क्या आदित्य? फ्रेश होने अक्षर, मैम आदित्य का माइक काम नहीं कर रहा। वेरी गुड। हाँ अक्षर, अमितेश आप बताओगे? अक्षर ने खोला तो था। हाँ अक्षर। मैम बताऊं क्या? हाँ बताओ। मैम वही, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए एंड देन दिस इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी। अच्छा कोई और जना है जिसका डिफरेंट आंसर हो? अमितेश सो रहे हो क्या? नहीं मैम, आवाज ही ऐसी है मेरी। नहीं आवाज क्या है, तुम्हारी फोटो ही ऐसी लगा रखी है तुमने। नहीं नहीं मैम, वो तो अलग है मैम। अच्छा कौन बोलता है कि इसका आंसर अलग होगा? इफ आई कंपाइल दिस कोड, इफ एनीबॉडी सेज मैम मैम ये सेम ही होगा। कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास है और फिर वो पैरामीटर पास ऑन हो रहा है क्लास बी में। हाँ तो आउटपुट कोई बोलता है इसके अलावा कुछ डिफरेंट होगा? मैम सेम ही होना चाहिए आई गेस। हाँ वैसे सबका आंसर सही है और जस्ट I also want to make a different answer, that is why I am saying I haven't written here main na. If I compile so this program will not run na. Getting my point? यस मैम। यस मेन मैम तो यस। हाँ मेन तो मेन तो मैंने लिखा ही नहीं नहीं है। है। मेन तो दोनों में नहीं लिखा है तो नहीं होगा। हाँ just I am showing although whatever you are saying that will be answer correct if I go to the main. तो अभी तक मैंने आपको इतना ही कोड दिखाया था और उसके बेस पर आंसर पूछ रही थी मैं आपसे। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लिसिटली सुपर कॉल कर दिया और ये ऑप्शनल है, नहीं भी करूंगी तो चलेगा। अब इसके बाद मैंने ये मेन मेथड लिखा है, अब रन करूंगी तो अब मेरा कुछ आउटपुट आएगा। तो बेसिकली ये कि ये कीवर्ड लिखने से क्या हो गया कि बच्चा जब ही एग्जिस्टेंस में आएगा जब पेरेंट्स होंगे, और पेरेंट्स होंगे तभी, मतलब पेरेंट्स कब होंगे? जब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो पहले ये वाली लाइन प्रिंट होगी, फिर ये वाली लाइन प्रिंट होगी। तो आंसर सबका सही था बट यहाँ पर मैंने मेन नहीं लिखा था, दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग दिस। क्लियर दिस? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो। मैम एक बार बिना सुपर के मुझे वर्किंग में बता सकती है? पीछे जा सकते हैं एक मिनट, पीछे वाली साइड पे। क्या होगा देखो, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मैंने सुपर कीवर्ड लिखा है, नहीं भी लिखती तो सेम ही चीज होती, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता। यस। ये कॉल होता तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो मतलब बाय डिफॉल्ट एक्सटेंड ए देखते ही जैसे ही बी वाला कंस्ट्रक्टर चालू हुआ मेरा, ए वाला कंस्ट्रक्टर वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद जाके बी स्टार्ट होगा, राइट? ओके ठीक है। So I will again get the control back here, then it will print here. हाँ ओके ठीक है। ठीक है। So now look at the next example. अब इसमें देखो, अब इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या कोड में? मैम मेन नहीं है। वो तो चलो ठीक है, और बाकी सब सही है? Like we're not initializing class A. Like super is not there. हाँ, so it is not necessary ना, if I have a default constructor in my parents, तो मतलब default है, then there is no, we don't explicitly call it ना, so it will automatically call it. Clear Amog? Default constructor didn't define a constructor in A, like A brag system out, this is class A. That's not default, right? Yeah. We are defining it, right? Yeah. So either I define or not define, automatically called. Then what's the use of super then? जब उसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा तब कैसे कॉल करूंगी? तब सुपर में पास कर देंगे मैम, सुपर से। ओके। क्योंकि मैम क्योंकि जो बी है वो तो उसके अनपैरामीटराइज को करेगा, तो सुपर उसके पैरा को कर देगा अगर उसमें दो होंगे तो। हाँ ठीक है। तो अब इस क्लास में अमोक व्हाट विल बी द आउटपुट? This is class A and this is class B. ठीक है।
तो बस एक चीज, भाई ये सिंपल सी चीज याद रखो कि चाइल्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पेरेंट्स। चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकना पेरेंट्स के बिना। तो अब एग्जिस्ट कैसे करेगा चाइल्ड? जब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि उसके वैल्यू तो जब ही इनिशियलाइज होती है ना। सो दैट इज व्हाट। नाउ लुक एट नेक्स्ट एग्जांपल। तो ये तो मेरा इसका ये आंसर आ जाएगा। अब ये लुक करो इसको, इस केस में क्या होगा? दिस इज क्लास बी, सिर्फ वही प्रिंट होगा। दिस इज क्लास, बट इट शुड गिव कंपाइल टाइम एरर। एरर देगा क्योंकि एक्सटेंड कर रहे हैं को, बट वो एक्सटेंड होगा नहीं। क्योंकि इसका प्राइवेट है इसीलिए। हाँ ठीक है। तो अब मैं इसको रन करूंगी तो आई विल गेट अ कंपाइल टाइम एरर दिस कि प्राइवेट कैन नॉट एक्सेस ना। तो बताए ना, प्राइवेट तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे अपना व्हाट्सएप प्राइवेट है। सो सिमिलर दिस, प्राइवेट इज नॉट एक्सटेंडेड। क्लियर दिस? यस मैम। Private is not extended or inherited by the child. Private जैसे सबका अपना अपना होता है, तो you cannot inherit. Clear this? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, next. अब मैंने ये बना दिया तो क्या होगा? Is there any issue? Overloading will happen, right? Like you're defining two constructors of the same type. So That's an issue, no? So it is a overloaded. It is overloading or not? Yeah, but we can't. It's going to be a compiler error. No. Compiling error आना चाहिए. It's a compiler error. It is not overloading. Why? मैम ओवरलोडिंग के लिए पैरामीटर्स अलग होने चाहिए। हाँ, नाम और पैरामीटर वन ऑफ द थिंग शुड बी अलग। तो इसमें दोनों सेम है, तो ये ओवरलोडिंग नहीं है। ये ओवरलोडिंग नहीं है तो कंपाइलर कैन नॉट डिस्टिंग्विश व्हिच मेथड शुड कॉल। सो दैट इज व्हाई इट विल गिव कंपाइल टाइम एरर। ठीक है। अब मैं इसको, ये मैंने बनाया बी है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बट इट विल गिव एन एरर। तो एंड इफ आई रन दिस आई विल गेट दिस एरर। A has a private access in A. A is already defined A. ठीक है? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now next, when superclass has a parameterized constructor. Superclass के पास parameterized constructor हो तो क्या होगा? तो ये मेरी क्लास ए है, इसमें मैंने एक प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें इनिशियलाइज करा और ये प्रिंट कर लिया। अब मेरे पास ये है। ठीक है। पहला क्वेश्चन, अगर मैं कंपाइल करूँ इस कोड को तो कोई एरर है क्या? हम लग तो नहीं रहा। मेन तो नहीं है, तो एरर तो नहीं है, रन भी नहीं होगा। एरर है बट इस कोड में। यस, व्हाट इज द एरर? मैम सुपर नहीं है। हाँ देखो, अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है नहीं पेरेंट क्लास में, तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो आई शुड कॉल फर्स्ट एंड दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन माय चाइल्ड क्लास। दैट इज द एरर। क्लियर दिस? भाई यहाँ पर ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है ना, तो इसको मुझे एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, और ये पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। तो अब देखो कंपाइल टाइम एरर आएगी, कैन नॉट फाइंड अ सिंबल कंस्ट्रक्टर ऑफ ए, दैट विल एरर आई विल गेट। क्लियर दिस? यस मैम। Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो आई विल गेट एन एरर। अब इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए क्या करूँ? मैम सुपर और फिर ब्रैकेट में सुपर में फिर पैरामीटर्स डाल देंगे। हाँ, सुपर ब्रैकेट में बी भेज सकती हूँ, 10 भेज सकती हूँ, सी कुछ भी भेज सकती हूँ। तो दिस इज द सॉल्यूशन। हम अगर बी में से डबल सी निकाल देंगे तब भी हो जाएगा? क्या मैम बी में से डबल सी निकाल देंगे, बी के पैरामीटर्स में से डबल सी निकाल देंगे तब भी हो जाएगा? मतलब डबल सी निकाल देंगे मीन्स? मैम ये सी हटा देंगे, सिर्फ इंट बी करेंगे, रख देंगे तब हो जाएगा?
हाँ, उससे तो क्या प्रॉब्लम है? You want to say कि there will be a parameterized विदाउट मैं विदाउट सी मैं वो सॉरी विदाउट सुपर without super, if what you will do? मैम डबल सी हटा दूंगा यहाँ से, बस मैं बी के पैरामीटर्स में से, हाँ, तब हो जाएगा, मतलब तो तब एरर हट जाएगा। सुपर तो लिखना ही पड़ेगा। लिखना ही पड़ेगा। हाँ, ओके मैम। वहाँ कितने भी पैरामीटर हो, it doesn't matter, but I have to write the super here because I have a parameterized constructor with my parents. मेरे पेरेंट्स और हमारी एक की है, तभी वो बात करेंगे ना, तो यू हैव टू पास दैट की। ठीक है, तो ये हो गया, तो आपको सुपर लिखना पड़ेगा, देन यू कैन राइट देयर और दिस। सो दिस इज द थिंग, क्लियर? अब मैंने मेन लिख दिया, तो ये सुपर कीवर्ड यू हैव टू राइट हियर। आई हैव इंक्रीज वन मोर पैरामीटर, इफ आई डोंट इंक्रीज आई कैन pass the fixed value also, that thing you know. So if I write this, then what will be the output? मेन में ये लिखूंगी कोड, तो क्या आउटपुट आएगा? It will be This is constructor A, this is constructor of class A, constructor of class B. तो पहले पेरेंट का कॉल होगा, फिर चाइल्ड का कॉल होगा, तो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। Then if I define class A, this is the constructor I have written, this I have written. Now I write. So अब यहाँ पे so what is the error here? Is there any super is not there. Super keyword is not there. Even I am writing here this dot a, मतलब this क्या है? ये non private, I can also access here, but super keyword is not here. That is why it will give an error. ठीक है, तो ये error देगा। ठीक है? Then Yes, next, ma'am. Yes, ma'am. क्या समझ नहीं आ रहा? Then next, look at here. I have written private, I have written protected, and here I have also used a string, so that I will tell you after some few classes. अभी तो बस सिंपल ये समझ लो, यहाँ लिखा है, इसको इनिशियलाइज कर लिया, ये मेरा प्रिंट मेथड है, मैंने क्लास B बनाई, उसमें मेरा ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, मैंने सुपर कीवर्ड यूज करा, इसको पास, ये कॉल हो जाएगा, ये इनिशियलाइज हो जाएगा, ये शो मेथड है। तो अभी क्या है, ये जो ए है ये तो प्रोटेक्टेड है, और स्ट्रिंग नेम जो है, सॉरी गलत बोल दिया, ए प्राइवेट है और स्ट्रिंग नेम प्रोटेक्टेड है। तो प्राइवेट मेंबर सब क्लास में अलाउ नहीं है एक्सेस होना, सो दैट इज व्हाई आई कैन नॉट राइट दिस लाइन, बट प्रोटेक्टेड कैन एक्सेस within the package or outside the package in a subclass। तो अभी तो हमारा सेम पैकेज में हम पैकेज से रिलेटेड कुछ चीज कर ही नहीं रहे, ठीक है, और ये सब क्लास है तो प्रोटेक्टेड तो एक्सेसिबल होगा ही होगा। तो आई कैन एक्सेस द नेम, दिस नेम आई कैन एक्सेस इवन इफ इट इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड। टू रीजंस, फर्स्ट इट इज डिक्लेयर्ड इन द सेम पैकेज, सेकंड इट इज एक्सेसिंग इन द सब क्लास, और इसके खुद के बी और सी तो वो कर ही सकते हैं एक्सेस, एंड दिस ए आई कैन नॉट एक्सेस, बट दिस प्रिंट मेथड आई कैन एक्सेस बिकॉज हियर आई हैवंट रिटन, सो इट मीन्स इट इज अ डिफॉल्ट, एंड डिफॉल्ट मीन्स इट विल बी एक्सेसिबल विद इन द पैकेज वेदर इट इज अ सब क्लास और सुपर क्लास। ठीक है, तो अब प्रिंट मेथड आप सिंपली प्रिंट लिख के ही कॉल कर सकते हो, सुपर कीवर्ड यूज करके भी यूज कर सकते हो और सिंपल भी करके यूज कर सकते हो। ये समझ आया? इसमें कोई डाउट? है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। I think I understood. मैम मेरे को इसमें डाउट नहीं था, मेरे को उसकी वर्किंग में थोड़ा डाउट है, मेरे को उसका क्लास कैसे काम कर रहे हैं। मैम जैसे मैं बी को मैं कॉल करता हूँ मेन में,
तो बी में सबसे पहले मैंने उसको बी और बी एक्सटेंड ए है, तो सबसे पहले ए का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो गया, राइट। अगर मैं उस कंस्ट्रक्टर से पहले कोई प्रिंट लगता हूँ, जिसमें प्रिंट हेलो लिखता हूँ, तो जब फाइनल एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट क्या होगा, हेलो, और उसके बाद जाके मेरा कंस्ट्रक्टर चालू होगा क्लास ए का, या फिर सिर्फ डायरेक्टली पहले कंस्ट्रक्टर चालू हो जाएगा? पहले ए का कंस्ट्रक्टर चालू होगा। हाँ, उसी ऊपर वाला चालू नहीं होंगे, राइट। हाँ हाँ, ओके, ठीक, बस। और किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये अलाउ नहीं है, और प्रिंट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन ये आपने कहा हो गया सब क्लियर। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी ये, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 10 OOP 8, और यही आ जाएगा प्रिंट, उसमें क्या है ठीक है, 10 OOP 8 और 10.60, मतलब वो शो मेथड कॉल होगा, शो से प्रिंट मेथड कॉल होगा, तो यू आर एबल टू एक्सेस द A, and name you are able to access because it is a protected, and B is and C are member of B1, ठीक है। देन यूज ऑफ सुपर कीवर्ड कितनी बची है इसकी एक बार स्लाइड देख लेते हैं, अदरवाइज कल करेंगे। मैम टाइम हो गया। ठीक है, तो कल करेंगे, ठीक है, ओके। थैंक यू मैम।